Hello everyone, welcome to you all in Learning Class 10. Today we are going to learn about the new chapter of your Class 10 English, chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So this is not only a chapter, this is an autobiography about Nelson Mandela written by him. And as you know that he was the first black president of the country South Africa. So let us read this. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Race means skin color. apartheid एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोगों को अपने स्किन कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ओके, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए. कैन यू से विच ऑफ द three countries named below had such a political system until very recently? Number 1 is United States of America, number 2 is South Africa, and number 3 is Australia. इसका आंसर बहुत इजी है क्योंकि जब आप इस चैप्टर को अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा. सो ये आप लोगों का एक तरह से आप कह सकते हो होमवर्क है. आप लोग मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है. ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस एंड जो पहला कमेंट करेगा एज वेल एज जिसका आंसर ऑब्वियसली करेक्ट होगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 वीडियो में लूंगी. ठीक है, and I will also discuss the answer of this question in the next video. Now, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid. So वो against थे, protest करते थे इस apartheid system को. Mandela had spent 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in the South Africa in 1994 and Mandela becomes the first black president of a new nation. Okay. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, actually Long Walk to Freedom is a kind of a book. Okay, जहाँ से ये extract लिया गया है. Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? तो जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर को आपको समझ में आ जाएगा इनोग्रेशन किस चीज का इनोग्रेशन की बात यहाँ पर कहा जा रहा है. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. So more than 3 centuries white rule, white domination के बाद Mandela फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. मिस्टर मैंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में भी वे थे एज अ मेंबर एज वेल एज जिसे हम लोग एएनसी के फॉर्म में जानते हैं, एएनसी पार्टी. won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. 252 टोटल 400 सीट्स में से 252 जीता था ये ANC पार्टी. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by the political and dignitaries from more than 140 countries around the world. So कहा जाता है कि ये जो इनॉग्रेशन था ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया में. एंड ओवर 140 countries have attended this ceremony. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said by Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा कि कभी भी और कभी भी नहीं ऐसा होगा कि ये जो ब्यूटीफुल सा लैंड है ये डिस्क्रिमिनेट होगा या फिर आप कह सकते हो ये डोमिनेट होगा किसी भी वन ग्रुप से. क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में तीनों लोग रहते थे, तीनों तरह के लोग रहते थे. एक है ब्लैक्स का एक कम्युनिटी हो गया, व्हाइट्स का एक कम्युनिटी हो गया, और कलर्स मतलब जो व्हाइट्स भी नहीं थे ब्लैक्स भी नहीं थे. ठीक है, ओके. नाउ
नेक्स्ट अब हम लोग का जो चैप्टर है वहां पर आते हैं। देखिए 10th May dawned bright and clear. Bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो ये कहा जा रहा है ओके बिसाइड बाय मतलब टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यहाँ पर आई नेल्सन मंडेला खुद है। तो वे कहते हैं कि ऑन 10th May द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये किस चीज के ऊपर इनॉग्रेशन था, अब लोग समझ पा रहे होंगे कि इस दिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का सेटअप हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड ये कहाँ पर हुआ था, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये भी लिखा हुआ है नीचे। सो यहाँ पर जो मंडेला कहते हैं कि वो कहते हैं कि आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। मैं बिल्कुल एकदम मतलब सराउंड एकदम घिरा हुआ था, जिसे कहते हैं world leaders say as well as the members who were coming to pay respect before the inauguration, ठीक है, जो लोग आ रहे थे उनसे। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil। ये एक largest gathering होने वाला था जहाँ पर लोग different country से आने वाले थे, okay। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो कहाँ पर होने वाला था जो सेरेमनी था, वो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने वाला था, जो कि फॉर्म किया गया है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors। हाँ, तो कहा जाता है कि पहले क्या होता, पहले के for decades ये एक जगह था जहाँ पर व्हाइट का ही रूल था, व्हाइट का ही सुप्रीमेसी था, ठीक है। लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि ये एक रेनबो गैदरिंग है। मतलब रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्लैक्स, व्हाइट्स एज वेल एज कलर्ड पीपल आर कमिंग हियर, ओके, of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government, जैसे कि हमने आपको पहले कहा। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani। तो जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि अच्छा, और एक बात 10th मई को यहाँ पर ऑटम डे बोला गया है। तो आपको पता है कि मई का महीना वहां पर ऑटम होता है, ठीक है, ये आपको जान के रखना है, इसीलिए ऑटम डे कहा गया है। I was accompanied by my daughter Zenani, इसको अंडरलाइन करके रखिए। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इस दिन मैं आया था मेरे डॉटर के साथ, जेनानी जिसका नाम है। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president। So second deputy president कौन था, Mr. De Klerk। Then ये नेल्सन मंडेला का पिक्चर है। Then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president। First deputy president कौन था, Thabo Mbeki। When it was my turn, नेल्सन मंडेला कहते हैं जब ये मेरा टर्न था, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो वो क्या कहते हैं कि फिर टेबो मेबेकी के बाद मंडेला जी ओथ लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ओके, एंड वे ऐसा प्लेज he pledged to obey and uphold the constitution
and to devote himself to the well-being of the people. वो ऐसा प्लेज लेते हैं कि वे कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, उसका कभी डिसोबे नहीं करेंगे, एज वेल एज वो अपने आप को डिवोट करते हैं पीपल से, ठीक है। और वे कहते हैं कि पीपल का अगर कोई भी मतलब जरूरत हो तो वो जरूर फुलफिल करना करेंगे। टू द assembled guests and the watching world I say, now नेल्सन मंडेला का जो स्पीच है उस दिन ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Taking all of us do by our presence here, confer glory. Confer means a formal word here or give glory and hope to newborn liberty. तो वे कहते हैं कि होप करते हैं हम लोग अब एक न्यूबॉर्न लिबर्टी आएगा, एक लिबर्टी सोसाइटी होगा, ये लिबर्टी कंट्री होगा, सॉरी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे कहा गया है? ये जो व्हाइट्स का जो सुप्रीमेसी था यहाँ पर, इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया है। Must to be born a society of which all humanity will be proud. और वे कहते हैं अब एक ऐसा सोसाइटी हमें तैयार करना है जहाँ पर सभी जो ह्यूमंस है जो यहाँ पर सभी जो ह्यूमंस है, ह्यूमैनिटी जो है वो प्राउड फील करेंगे। We who were outlaws not so long ago, यहाँ पर देखिए we who were outlaws meaning because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. हाँ, तो ऐसा था कि apartheid system जैसे जैसे साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस होता था, तो जो अदर कंट्रीज थे वो उनका उतना गुड रिलेशन नहीं था साउथ अफ्रीका के साथ। वे कहते थे कि वहां पर apartheid सिस्टम फॉलो होता है, दैट मीन्स द कंट्री इज नॉट गुड, ओके। इसी वजह से have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो जो कंट्री के साथ उन लोगों का अच्छा रिलेशन नहीं था, वो लोग भी आए थे इस सेरेमनी में, इस इनॉग्रेशन में, to be a part of this inauguration. Okay, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice. तो वे thankful होते हैं as well as for peace, for human dignity, ठीक है। Next, we have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. कि वो कहते हैं कि एट लास्ट हमें अपना जो फ्रीडम है साउथ अफ्रीका का, नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो मिला। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वे कहते हैं कि हम लोग ऐसा प्लेज लेते हैं कि हम लोग इसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी नहीं होने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोवर्टी। Deprivation means state of not having one's rightful benefits. जब आपको कोई राइट नहीं दिया जाता है, आप लोग अपना जो बेनिफिट्स है यूज नहीं कर पाते हो, तो उसे डेप्रीवेशन कहते हैं। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। फिर देखिए never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. जो पहले लिखा हुआ था वो लाइन फिर से लिखा गया। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ठीक है, ये स्पीच उन्होंने बोला था। हाँ, next. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. यहाँ पर देखिए स्पेक्टेकुलर एरे का मीनिंग लिखा गया है, which is your an impressive display, colorful and attractive.
यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ही देरी के बाद ऐसा देखने को मिला कि जो जेट्स होते हैं वो सुंदर सा एक डिस्प्ले कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। ठीक है, ओके। Away means respect and fear. Away means respect and fear. Next, helicopter and troop carries roared in perfect formation over the Union building. Yes, तो यहाँ पर कहा जा रहा है troops carries means vehicle carrying soldiers। तो वो लोग एक पर्टिकुलर एक जो मतलब जो फ्लैग था साउथ अफ्रीका का उसका फॉर्मेशन स्काई में कर रहे थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कलर जेट्स व्हिच कंटेन डिफरेंट कलर्स। ओके, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यहाँ पर आपको सिर्फ मिलिट्री फोर्स ये सब देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक मिलिट्री का जो रिस्पेक्ट है, जो लॉयल्टी है उनके कंट्री के ऊपर एज वेल एज ये जो डेमोक्रेसी है इसके ऊपर, तो वो दिखाई दे रहा था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयरली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो रेस्पेक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर जो कि एक फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके ऊपर। ठीक है, तो यही लिखा गया है। इस वीडियो में इतना तक ही हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ दी जो रिमेनिंग जो चैप्टर है उसे मैं कवर अप करूंगी पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।